Hello and welcome to another video of Learning with Kalpavruksha. आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं, this chapter is chapter number 5 from your textbook NCERT class 10th and this is called Arithmetic Progressions, right? So आज का जो हम वीडियो है उसको हम स्टार्ट करेंगे by first understanding what is an arithmetic progression. So let's understand from understanding the very basics of how do we define a arithmetic progression. Now let's understand. The first part of the word arithmetic progression is arithmetic itself, which in normal language means maths. And maths means numbers. So anything which has numbers is called a arithmetic, right? तो उसको हम यहीं पे पार्क कर देते हैं. Now let's understand what is a progression. Progression is basically anything that's progressive, anything that's increasing, anything that's growing. So basically, a series of numbers that is growing in a certain pattern with a common difference is called an arithmetic progression. Now, how do you denote that? उसको हम डिनोट कैसे करते हैं? से सपोज हम डिफाइन कर रहे हैं कि एक कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है which is defined as a1, a2, a3, a4 and so on till n. मतलब n क्या है यहाँ पर? अब n होता है जब हमें ये चीज मालूम नहीं है कि ये कितनी लेंथ तक जाएगी, राइट? सो वी राइट इट एज n. नाउ यहाँ पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए. a1 माइनस a2 इज इक्वल्स टू होगा आपका d, which is also called as the common difference, right? a1 minus a2 is equals to d, which is the common difference. So जब हम इस arithmetic progression को जब हम denote करते हैं, it is denoted as a1, a2, a3, a4 and so on till an. Now what is an? an is basically जब हमें मालूम नहीं है कि where is it going to end, we call it till an. मतलब a nth number that will exist. Now let's understand कि इसको हम define कैसे करेंगे. Define हम इस तरीके से करेंगे, a1 है और a2 है. a1 minus a2 is a number which is d, which can be denoted as the common difference. Now what is this common difference? Why is it common? Because इसके जो आपके बाकी के terms होंगे which is a2, yes, a2 minus a3 will also be d, a3 minus a4 will also be d, right? Which is why this is called a common difference. मतलब आपका प्रोग्रेशन जिस तरीके से प्रोग्रेस करता चला जाएगा उस तरीके से your d will always be a constant number. Now let's understand, इसमें एक पहला टर्म होता है, right? Each of the numbers that exist in an AP is called as a term, right? हर एक नंबर जो एग्जिस्ट करेगा आपके एक प्रोग्रेशन सीरीज में उसको हम बोलते हैं टर्म. नाउ every arithmetic progression will start from the first number. Now what is that first number called? The first number is called basically the first term of the series, which is always denoted by a. A is called the first term, d is called the common difference and n जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, n is basically your nth term of the series, right? Now हम एक एग्जाम्पल के साथ पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि what does an arithmetic progression look like, right? Now let's take an example. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके दो टाइप के हो सकते हैं, एक होगा आपका फाइनाइट और एक होगा आपका इनफाइनाइट. आई विल एक्सप्लेन एक ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आप फाइनाइट और इनफाइनाइट कैसे बना सकते हैं. Now let's understand. आपका we've all been studying the 2 का टेबल from the very beginning of our mathematics का सब्जेक्ट. जब से हमने अपनी मैथमेटिक्स स्टार्ट करी है तब से हमने 2 की टेबल रखनी शुरू की है. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10 and so on, right? हम कहाँ जाकर के इसको खत्म करते हैं? हम खत्म करते हैं इसको 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12,
so on, and 2 tens are 20. Now let's understand यहाँ पर क्या हो रहा है. 2 can be denoted as 2 into 1. 4 can be denoted as 2 into 2. 3 can be denoted as 2 into 3, and this can be denoted as 2 into 4. And so 2 into 10 will be 20. ठीक है, ये है आपका एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन which has always existed as the very basics of mathematics. Now let's understand यहाँ पर क्या हो रहा है. इस नंबर सीरीज को जब हम लिमिट करते हैं 10 पे, राइट, तो हमें यहाँ पर हमारा n पता है. n मतलब हो गया 10. हमें हमारा a पता है, a मतलब हो गया 2. n पता है, a पता है, और हमें क्या पता है, हमें पता है हमारा d. व्हाट इज द d? 4 minus 2 2, 6 minus 4 2, 8 minus 6 2, 10 minus 8 2. So basically your d is 2, राइट. 3 टर्म्स होते हैं आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो हमने अभी डिस्कस किए, और आपके पास वो तीनों टर्म्स यहाँ पर हैं. जब आपके पास वो तीनों टर्म्स यहाँ पर हैं, then this is called as a finite series, राइट. मतलब हमें अपना n पता है, तो हम इसमें से कोई भी नंबर अगर हमें फिगर आउट करना हो हम इजीली कर लेंगे. So which is why this is called as a finite series. Now अगर मैं इसको 10 के आगे भी लेके जाना चाहूँ, let's say for example I want to carry it maybe to an unknown number. अगर मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करूँ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20 so on, I can do it, right? Now अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूं कि मैं एक nth नंबर तक इसको लेकर जाना चाहती हूँ, उस nth नंबर पे जाकर के इसकी वैल्यू होगी 200. Now I don't know what that n is. So उस केस में क्या होगा, आपका a फिर भी रहेगा 2, आपका n हो जाएगा something to figure out, और आपका d फिर भी रहेगा 2. इस केस में जहां पर आपका an था 20, यहां पर मैंने डिफाइन किया है an is equals to 200. Now an हमने क्या डिफाइन किया था, हमने क्या बोला था कि जब भी हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट होता है, हाउ डज आवर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट? a1, a2, a3, a4 and so on till an. मतलब an तक जाने तक के लिए हमारे जो जर्नी है it starts from a1 till an. Now what does that mean? It means that this is a finite series जहां पर आपको an आपका मालूम है और आपको आपका n भी मालूम है. यहाँ पर आपको an तो मालूम है लेकिन आपको n नहीं मालूम है, n की वैल्यू नहीं मालूम है. Now what does that mean? That means that this can be an infinite series. मतलब मुझे अभी अपना n unknown है. Once I find it out, it can be finite. It can be called as finite, but right now it is not finite. Correct? Now any series that can go up to infinity and will have no ending with an undefined n is called as infinite series. इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हम अभी समझने की कोशिश करेंगे विद अ रियल लाइफ एग्जाम्पल. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. वी विल टेक 2 एग्जाम्पल्स. फर्स्ट लेंगे हम एक एग्जाम्पल जहां पर हम एक लेंगे फाइनाइट सीरीज, और एक लेंगे एग्जाम्पल जहां पर हम लेंगे अपना एक इनफाइनाइट सीरीज. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दो चीजें. हम बोलते हैं कि वी परचेज्ड अ कार. नाउ व्हेन आई परचेज द कार, the on-road price on the 0th year of the car was 5 lakh rupees. Right? कार क्या होता है? Anything that you buy for yourself, paying some money. If it is a material, then उसको हम बोलते हैं asset. Any asset that you purchase for yourself, say suppose a car, it has a value when you purchase it. You pay it and then you take the commodity. एक बार वो कमोडिटी आपने ले ली, देन एवरी ईयर उसकी जो प्राइस होती है वो डेप्रिशिएट होती है. नाउ हाउ डज इट डेप्रिशिएट? लेट्स अंडरस्टैंड. अगर मैंने बोला कि इस गाड़ी की जो वैल्यू है ये बहुत फास्ट डेप्रिशिएटिंग है, से एवरी ईयर इट इज रिड्यूसिंग बाय 1 लाख रुपीज. सो से इट वाज फॉर 5 लाख, नेक्स्ट ईयर इट विल बी फॉर 4 लाख, सेकेंड ईयर इट विल बी for 3 lakh,
एंड नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। सो एक टाइम ऐसा आएगा जब प्रोबेबली इसकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी जीरो। मतलब अब हम क्या बोल रहे हैं, ये जीरो क्या हो रहा है? क्या कार हमें मुफ्त में मिलने लगेगी? नहीं, कार हमें मुफ्त में नहीं मिलेगी। What will happen is that since you purchase the car, you are the owner of the car. आपने जब वो गाड़ी खरीदी तो आपने 5 लाख रुपए दिए थे, लेकिन अगर आपको अभी वो गाड़ी बेचनी हो बाहर जाकर के, तो आप उसको किसी भी प्राइस पे नहीं बेच पाओगे। Why can't you sell it at any price? Because it becomes a scrap. कोई भी आपका एसेट जो होता है वो एक सर्टेन टाइम के बाद स्क्रैप मटेरियल में टर्न आउट हो जाता है। मतलब आप उसको लोहे के दाम पे बेच सकते हो, बट इट कैन नॉट बी सोल्ड एज अ कार अगेन, क्योंकि उसकी वैल्यू एवरी ईयर डेप्रिशिएट हो रही थी, राइट? सो दिस इज अ रिवर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस केस में क्या हो रहा है, आपका प्रोग्रेशन ऑपोजिट साइड में चल रहा है, हेंस इट कैन बी कॉल्ड एज अ रिवर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, इसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, एंड लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। सो ये क्या है? इज इट अ फाइनाइट सीरीज और इज इट अ इनफाइनाइट सीरीज? इट इज डेफिनेटली अ फाइनाइट सीरीज, बिकॉज वी नो दैट किस ईयर में जाकर के ये वैल्यू हमारी जीरो होगी। बिकॉज हमें डी पता है, हमें क्या फिगर आउट करना है? अपना एन फिगर आउट करना है। सो इफ द सेकेंड ईयर में जाकर के ये 3 लाख होता है, थर्ड ईयर में इट विल बी 2 lakhs, फिफ्थ ईयर में इट विल बी 1 lakh, and the sixth year would be 0. So basically your n is equals to 6. मतलब अगर आपने 0th ईयर में एक गाड़ी खरीदी है and if you know that your value is going to depreciate by 1 lakh every year, then by the 6th year your car is going to turn into a scrap value as per the market. That's the basic understanding of this reverse arithmetic progression series, right? Now हम इसी चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि प्रोग्रेसिव सीरीज किस तरीके से बन सकती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, वी परचेज अ लैंड। लैंड इज आल्सो अ एसेट, राइट? लैंड इज आल्सो एन एसेट, समथिंग दैट यू बाय, उसकी वैल्यू आपकी इंक्रीज ही होती रहती है, करेक्ट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि उसकी वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो वो किस रेट पे इंक्रीज होती है, एंड हाउ कैन इट बी कॉल्ड अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, मैंने 0th ईयर में सेम प्राइस पे स्टार्ट करते हैं, मैंने से 5 लाख रुपए में एक लैंड खरीदा, राइट? ना फर्स्ट ईयर में मैंने बोला कि उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है बाय ₹1,00,000। सो फर्स्ट ईयर में जो उसकी वैल्यू होगी 6 लाख, मतलब मैंने जब उस लैंड को परचेज किया, आई बॉट इट फॉर 5 लाख। द नेक्स्ट ईयर द वैल्यू इज एट 6 लाख। इफ आई सेल इट राइट नाउ, मैं उस पर 6 लाख कमा सकती हूँ। मतलब आई गिव द लैंड, I will get by 5 lakh also, plus I will get 1 lakh additional, जो उसका incremental value है for that 1 year, right? That is the common difference. Now let's understand यहाँ पर कैसे होगा। Second year will be 7 lakh, right? And so on. So basically nth year तक जाते जाते इसकी एक सर्टेन वैल्यू होगी। सो बेसिकली ये कैसे इंक्रीज कर रहा होगा, हम बोल रहे हैं कि इसकी एक सर्टेन वैल्यू हो जाएगी। से लेट्स अंडरस्टैंड, हम बोलते हैं कि उसकी वैल्यू हो जाती है x। अब x की वैल्यू क्या है वो हमें नहीं पता, तो लेट्स से दिस बिकम्स x। nth ईयर है, वैल्यू x है। यहाँ पर क्या है, वी डोंट नो व्हाट ईयर आर वी टॉकिंग अबाउट। वी आर सेइंग कि कोई एक ऐसा टाइम पीरियड भी आ सकता है जब इसकी प्राइस बढ़ती चली जाए, अगर मैंने सेल नहीं करा, दिस लैंड जस्ट is there, so its price is increasing. But इसी केस को, इस केस में क्या है आपका कि आपको n नहीं मालूम है, so this is an infinite series. This can go as long as you want to take it, as long as you don't put a stop to it, as long as you don't sell out the land is yours and the value is increasing. Hence it is a arithmetic progression which is increasing, correct? Now let's understand कि हम इसको जब डिफाइन कर देते हैं, लाइक अभी मैंने अगर यहाँ पर एक नंबर डाल दिया कि बताइए कि अगर आपकी वैल्यू 1 लाख से इंक्रीज हो रही है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इसका 10th, अगर हमने n को डिफाइन कर दिया कि 10th ईयर में जाकर के इसकी वैल्यू क्या होगी, करेक्ट? सो नाउ आई एम सेइंग दैट 0th ईयर में इट वाज 5 लाख, फर्स्ट ईयर में इट इज 6 लाख, 7, ऐसे करके 10th ईयर तक जाओ। 10th ईयर तक जाकर के मुझे बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी। उस केस में क्या होगा, मेरा n डिफाइन हो गया। जहां पर भी मेरा n डिफाइन हो जाएगा, दैट विल बिकम अ फाइनाइट सीरीज।
irrespective of your arithmetic progression is a progressing series or a reverse arithmetic progression, you just have to understand किसी भी केस में फाइनाइट या इनफाइनाइट आपका हो सकता है। जहां पर आप अपना एंड डिफाइन कर दोगे वो फाइनाइट सीरीज हो जाएगी, जहां पर आपका एंड इनफाइनाइट तक चला जाता है दैट इज एन इनफाइनाइट सीरीज। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। जो हमने इसमें अपना फॉर्मूला बताया, बेसिकली जो हमने टर्मिनोलॉजीज बताई उसको हम फॉर्मूले में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो हमने बोला कि कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर आपका होता है, सो से AP इज इक्वल्स टू A1 A2 A3 A4 एंड AN, राइट। इसमें क्या है, आपकी ये सीरीज है जिसका हर एक जो टर्म है these are called as terms, these are called as terms. The first term is called as A, right? फिर आता है D which is your common difference. D क्या होता है, D will always be A2 minus A1 A3 minus A2 and A4 minus A3 equals to D is equals to D is equals to D. D हमेशा सेम रहेगा, across the series your D will be same. Now these are your terms A D and यहाँ पर क्या है N. N is your nth term of the series, nth term of the series. Now that's your AP का definitions of the connotations, मतलब आपने जो भी terms यहाँ पर define किए हैं किस तरीके से चलती है ये सीरीज वो हमने आपको बता दिया। अब नाउ लेट मी टेल यू दैट इस सीरीज को हम आप A1 A2 A3 A4 को आप डिनोट कैसे कर सकते हैं। हमेशा आपका जो भी नंबर होगा दैट नंबर विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्मूला ऑफ AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इनटू D, राइट। सो आपका जो भी सीरीज है आपको किसी भी तरीके से आपको डिफाइन करना हो, योर लास्ट नंबर इफ यू नो योर n, so the nth number of the series is your AN, correct? And then you have A which is your first term of the series, then you have n minus 1 which is basically n क्योंकि आपको मालूम है उसमें से 1 subtract करके multiplied into D which will give you the nth number of the series, right? This is very simple to understand if we do it through questions. Now let's understand, एक क्वेश्चन के साथ हम पहले इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, so हम इस चीज को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ऑलराइट, बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन पहले मैं उठाती हूँ which is your example number 1 on page number 54. Now let's understand यहाँ पे क्या बोल रहा है। वेरी बेसिक क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज आपका एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज 3/2, द सेकंड टर्म ऑफ द सीरीज इज 1/2 and your third is -1/2 -3/2 and so on, correct? Write the first term and write the common difference of it, right? अब हम इसमें क्या करेंगे, जो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था उसको डिफाइन करने की बारी आई है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट टर्म क्या है, आपका फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, सो A is equals to 3/2, राइट। सिर्फ इतना ही पूछा है आपसे कि आपका A क्या है और आपका D क्या है। D हमने क्या बोला था कि D हमेशा कॉमन रहेगा और सेम रहेगा, 1 - 2 -3/2. In this case it will be -2/2 which is equals to -1. Now let's understand, इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं एक बार, क्योंकि हमने बोला ये नंबर हमेशा सेम रहना है, करेक्ट? तो नाउ सेम रहना है तो फिर अगले वाले पे भी सेम होना चाहिए, -1/2 -1/2 D, राइट? सो -1/2 -1/2 क्या हो जाएगा, -2/2 equals to -. सो यहाँ पर हमने क्या करा, 1/2 is basically your A2 minus A1, करेक्ट? हमने क्या करा था, A2 minus A1 करा। अब आप देखो नेक्स्ट वाले में हमने क्या करा, दिस इज A3 minus A2 करा, A3 minus A2 करा तो भी आपको -1 आया है, A2 minus A1 करा तो भी आपको -1 आया है, मतलब आपका D क्या है, -1. You can try it with another one as well.
So let's try it with a4 minus a3, which becomes minus 3 by 2 minus 1 by 2. Now it becomes minus 4 by 2. Okay, minus karna hai, right? So this becomes plus. This becomes plus. Sorry, my bad. This has to be subtracted. So this becomes minus 3 by 2 minus 1 by 2, and hence this becomes 3 by 2 plus 1 by 2. Plus minus is a minus, and with the now sign of the greater number is equals to -1. I hope यहाँ पे confusion नहीं हुआ होगा. मैंने थोड़ा टाइम ले लिया इसको सॉल्व करने में. सो बेसिकली हम जब भी कोई भी ऑपरेशन करते हैं, आपने पीछे के चैप्टर्स में, पीछे के क्लासेस में भी आपने पढ़ा है, मैं बस रिपीट कर रही हूँ. एनी ऑपरेशन दैट गेट्स एग्जीक्यूटेड विद अ साइन ऑफ अ नेगेटिव नंबर, चाहे वो डेसिमल हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो इंटीजर हो, अगर उसके आगे आपका नेगेटिव साइन है एंड आप उसको सब्ट्रैक्शन में लेकर के आ रहे हो, सो माइनस एंड माइनस बिकम्स अ पॉजिटिव साइन व्हिच इज अ प्लस साइन. Now minus 3 by 2 plus 1 by 2, minus minus plus. Now what did we do? Because this is a common denominator, so यहाँ पर हम आपके numerators add होंगे. So add कैसे होंगे? Plus minus according to the Bodmer's rule, plus minus it gives you a result of a minus. Minus होगा तो 3 minus 1 is 2 and sign gets of the bigger number which is your 3. So minus 2 by 2 is equals to -1. Hence your D is equals to -1. तो आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा था? ए फिगर आउट करो और डी फिगर आउट करो, वो हमने कर लिया, राइट? आई होप दिस क्वेश्चन was able to clear the basics of it. Now let's take a question from the chapter which will clarify it further. जहां पर जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि जब भी आप मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, राइट, उस मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए you always have to understand the language of your problem. Now problem statement को समझ करके उसमें से क्वेश्चन को derive करना and then क्वेश्चन को start करना is very very important. Now let's understand how. So I am picking up exercise 5.1, page number 55, question number 1. The question says, in which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression? And why? So the first part of the question is the taxi fare after each kilometer when the fare is 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer. मतलब एक टैक्सी है मेरी, वो टैक्सी जब चल रही है तो फर्स्ट किलोमीटर के चार्जेस हैं मेरे 15 रुपए, और हर एडिशनल आपका किलोमीटर के लिए 8 आपका रुपीस प्लस 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 चार्जेस है. मतलब 15 रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे, 8 रुपए उसके ऊपर से लगेंगे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड यहाँ पर क्या होगा, किस तरीके से सीरीज फॉर्म होगी. ए डिफाइंड है आपका विच इज योर A1 इज इक्वल्स टू 15, राइट. A2 विल बी इक्वल्स टू 15 प्लस 8, मतलब 23, right? A2 gets defined as 23. Now A3 will get defined as आपका next series आपके A2 से form होगा, right? So 23 plus 8 which becomes 31 and so on. So basically अगर मैं इसका 4 भी define कर दूं तो it will be 31 plus 8 equals to 39. Now A1 is 15, 23, 31, 39. मतलब एवरी एडिशनल किलोमीटर अगर मैं 4 किलोमीटर तक जाऊं तो मेरा चार्ज हो जाएगा 39 रुपीज, जबकि मेरा फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज बस 15 रुपीज. My by the time I complete 4 kilometers with that same taxi or with that same auto rickshaw, my fare is going to be 39 rupees. Now let's understand ये क्वेश्चन आया कैसे, मतलब इस चीज ये यहाँ पर जो डेराइव हमने किया वो डेराइव किया कैसे. हमारे पास A डिफाइंड था, A was defined as 15 and D was defined as 8, right? Now let's understand जो पहला वाला टर्म आया वो क्या आया आपका A plus D, correct? Now अब आपका क्योंकि ये A plus D था, right? So आपका A plus D आया. Now let's break down the 23. 23 में क्या हुआ,
सॉरी यस a प्लस डी आया 23. नाउ द नेक्स्ट टर्म विच इज 31. यहाँ पर ये क्या था, ये वाला टर्म था आपका a प्लस डी और ये क्या है आपका d. So a3 you arrived at as 23 was a plus d plus d, which means a plus 2d. Right? Let's write it in a very proper manner so that we get it. How are we doing it? Okay. यहाँ पर क्या था, a1 was 15 which was equals to your a. तो आपका a क्या है क्वेश्चन का हम डिफाइन कर लेते हैं. a है मेरा 15, मतलब फर्स्ट किलोमीटर का फेयर इज 15 रुपीज. करेक्ट. हम इसको डेराइव करेंगे सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि प्रोग्रेशन बनता कैसे है. d आपने डिफाइन कर दिया कि आपका 8 है, मतलब पर किलोमीटर के आपके चार्जेस इंक्रीज हो रहे हैं बाय 8 रुपीज. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड a1 कैसे आएगा आपका. a1 जो होगा आपका सीरीज का दैट विल बी इक्वल्स टू a. Now A2 कैसे होगा आपका, A2 will be equals to A plus B, मतलब 15 plus 8 is equals to 23. करेक्ट. Now हम जाएंगे A3 पे. A3 आपका क्या था, 23 plus 8. 23 क्या है, A2, राइट. और A2 हमने क्या डिफाइन किया है, A plus D. A plus D डिफाइन किया और 8, 23 plus 8. 8 क्या है, D, मतलब ये बन जाता है A plus 2D. करेक्ट. मतलब a1 is equals to a, a2 is equals to a plus d and a3 is equals to a plus 2d. Now let's moving on to a4. a4 पे हमने क्या डाला, 31. 31 क्या है, 31 is your a3. a3 की वैल्यू क्या है, a plus 2d. 2d में हमने क्या ऐड करा, 8. 8 क्या है आपका, d. d डाला हमने यहाँ पर, ये क्या आया, a plus 3d. मतलब your a4 is a plus 3d. करेक्ट. सीरीज कैसे चल रही है, वेरी सिंपल. कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा आपका हमेशा इसी सीरीज में चलेगा. आपका फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज विल बी a, द सेकंड टर्म ऑफ द सीरीज विल बी a plus d, द थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज विल बी a plus 2d, the fourth term will be a plus 3d, fifth term will be a plus 4d and so on. करेक्ट. कभी भी आपको जब ये चीज बोली जाए कि आपको nth टर्म तक जाना है, वेरी सिंपल, you know your a, you know your d. If you know your a, then you can start the series by finding out with the help of d. If you don't know your d, first you have to figure out your d and then you have to form the statement, right? This is your arithmetic progression जहां पर it progresses with a common difference which is d, and everything increases by a certain definition of a number which is multiplied with the progressive numbers which is 1, 2, 3 and 4 and so on. Correct? Okay, now यहाँ पर हम एक चीज और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. पहली बात, जब हम किसी एक पोजीशन पे खड़े होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल if I am standing at a position of 30, ओके, फाइनाइट रखने की कोशिश करते हैं इस सीरीज को. एक फाइनाइट सीरीज क्रिएट करते हैं which say I will say that 3 की टेबल ले लेते हैं. So it is 3, 6, 9, 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 21, राइट. सो 3 into 1 से लेकर के 3 10s are 30 तक हमने 3 10s are 30 तक हमने इसमें मेंशन किया है. नाउ इफ आई टेल यू कि फिगर आउट द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट. सो अगर मैंने बोला सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो फर्स्ट टर्म क्या है, a1, सेकेंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3, a4, a5, a6 and a7. सो a6 क्या है, 18. a6 is equals to 18. Now अभी अगर मैं यही चीज आपको बोलूं कि रिवर्स करते हैं, ठीक है. a6 आपको पता था, आपने 1 से स्टार्ट किया और 6 पे पहुंच गए. Now let's do it. Let's find out the sixth term from the behind, मतलब एंड ऑफ द सीरीज. एंड ऑफ द सीरीज से स्टार्ट करेंगे तो उस केस में आपका नंबर बनेगा a1, a2, a3, a4,
A5 A6, राइट। मतलब जब सीरीज के बिगिनिंग से आप देखोगे तो ये जो नंबर है ये है आपका, दिस नंबर इज A5, मतलब from the beginning of the series this is at a position of 5, from the end of the series it is at a position of 6. Now why does that happen? Let's understand this. This is the same thing. जब मैंने आपको बोला कि ये सीरीज यहां से स्टार्ट हो रही है तो आपका A क्या होता है? 30, correct? When I am telling you that your A is starting from here, so your A1 is 30, correct? And when your AP is starting from here, then your A1 is 3, right? So hence your A1 and A1 की वैल्यू पे आपका डिपेंड करेगा that this 15 in the 3 ka table is at the 6th position or at the 5th position. Are you starting from reverse or are you starting from upside down? Correct? Clear? इसको एक एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करते हैं. That will make this question a little clear for all of us. All right. So this question is question example number 8 on page number 59. Okay. Question बोलता है आपका find the 11th term from the last term of the AP. तो आपका question है, आपके पास एक AP defined है. Now your AP is 10, 7, 4 and last term is -62. So 10, 7, 4 and -62. राइट. सो इस केस में ये क्या है, ये सीरीज जो है वो नेगेटिविटी में जा रही है, राइट. मतलब 10, 7, 4 से मतलब ये डिक्रीज हो रहा है. अगर ये डिक्रीज हो भी रहा है और ये नेगेटिव में जा भी रहा है तो भी ये इनफाइनाइट है, मतलब ये जीरो पे नहीं रुका. अगर ये इंटीजर जीरो पे जाकर के ये वर्टेक्स पे रुक जाता then this would have been a finite series. This is an infinite series which can go on if you do not cap it at -62, right? तो अभी हमें क्या बोला गया है, यहाँ पे हमें बोल रहे हैं कि पीछे से 11th टर्म फिगर आउट करना है मुझे, राइट. मतलब पीछे से 11th टर्म फिगर आउट करना है, मतलब मुझे अगर पीछे से 11th टर्म फिगर आउट करना होगा तो A1 will change to -62. It should change to -62, correct? Okay, now let's understand और क्या बोला है क्वेश्चन में. पहले तो बोला है कि find the 11th term of the last term of the AP. ठीक है. अब मुझे पहली बात तो 11th टर्म को फिगर आउट करने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि इस सीरीज में टोटल नंबर्स कितने हैं, राइट. आई डोंट नो हाउ मेनी नंबर्स डू आई हैव इन दिस एंटायर सीरीज. जब तक हमें अपना n पता नहीं होगा तब तक हम इस चीज को सॉल्व कैसे करेंगे कि हमें किस नंबर तक, कौन से नंबर्स, कौन सी पोजीशन से लेकर के कौन सी पोजीशन तक जाना है. एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे. यहां पर सबसे पहले तो अपना a डिफाइन करेंगे. व्हाट्स योर a इज 10. नाउ व्हाट्स योर d? योर d इज 10 से 7 हो रहा है, करेक्ट. सो मतलब 7 - 10 is -3. I am not calculating it again. You can do it from here as well. 4 - 7 will always be a -3. Correct? Now हम इस चीज को proceed करेंगे. Yes, and the last number is -62. Okay. यहाँ पर एक छोटा सा twist डालेंगे हम. This question is divided into 2 parts, right? First part में आपको बताया गया है कि आपका एक last term है, right? तो फाइनाइट सीरीज है, हमें मालूम है, राइट. तो हम इसको लिख लेते हैं दैट दिस इज अ फाइनाइट सीरीज. जब फाइनाइट सीरीज है सो बेसिकली -62 इज माय लास्ट टर्म. लास्ट टर्म बोलना इसको गलत नहीं होगा, राइट. If I call -62 as the last term, it would not be a wrong thing to say. It is the nth term. For sure it is the nth term. But right now since the nth term is not known and we have to figure out the n, let's call it as L, which is the last term. तो यहाँ पर आपका last term क्या है? Last term is -62. It will always be treated as the nth term only. यहाँ पे क्योंकि हम n ही फिगर आउट करने के लिए जा रहे हैं, it will be denoted as an only.
In this case, only the case is that an is equals to l, राइट? क्यों किया है ऐसा, कॉनोटेशन क्यों बनाई है हमने एक दूसरी, वो आपको सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पता चलेगा. लेट्स अंडरस्टैंड कैसे. फॉर्मूला लिखेंगे हम अपना, सेम होता है ए एन मतलब एल इन दिस केस इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. सो योर एल इज माइनस 62 इज इक्वल्स टू 10 प्लस एन माइनस वन, मतलब एन मालूम नहीं है और डी है आपका -3. Let's solve this equation. -62 is equals to 10 minus 3n plus 3. 10 plus 3 is 13. So -62 is equals to 13 minus 3n. So this becomes 3n is equals to 13 plus 62. 3n is equals to 5. n is equals to 25. राइट? मतलब n जो है मेरा वो 25 है, विच मीन्स -62 जो है मेरा दैट इज द 25th टर्म. I can write it as A25 is equals to -62. करेक्ट? फिगर आउट कर लिया. 25 टर्म्स है यहाँ पर, लास्ट टर्म इज -62. अपन को अभी निकालना क्या है, हमको निकालना है अभी आपका 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब पीछे से चलना है और 11th टर्म फिगर आउट करना है. तो अगर मेरा ये टर्म जो है वो 25th है तो 11th टर्म मेरा क्या होगा. जब हमने अभी वो नंबर देखा तो अगर हम बात करें कि हमारा 11th टर्म क्या होगा, तो मुझे इस नंबर, ये मेरा 25th टर्म है, राइट? आई विल हैव टू कंसिडर दिस एज वेल. जब भी कभी आपको सीरीज के एंड से आपको कोई चीज नंबर को फिगर आउट करने के लिए बोला जाता है, वो क्यों होगा आप देखिए इसमें. सो ओके, सो व्हाट्स हैपनिंग यहाँ पर इज 11th टर्म आपको फिगर आउट, हमें फिगर आउट करना है. विल स्टार्ट बाय क्लियरिंग सम स्पेस. I will make it very very simple, then I will explain it with a formula. मैंने क्या बोला कि हमने क्वेश्चन को डिफाइन कर लिया था कि n is equals to 25 है. Let's keep it here. Okay. Now let's understand, अगर मैंने यहाँ पर 5 या 4 नंबर हम रखते हैं, कुछ 7 नंबर्स, say 1, say 4 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, 1 2 3 4 5. करेक्ट? सो ये है आपका मिडिल नंबर. मैं बोल रही हूँ आपको कि फाइंड आउट द फोर्थ नंबर फ्रॉम द लास्ट. सो फोर्थ नंबर फ्रॉम द लास्ट इज A1, A2, A3, A4, मतलब 4. नाउ यही नंबर आपका बिगिनिंग से क्या होगा, A2, A3, A4, A5. ठीक है? Your A2 from the beginning of the series is A4 from the last of the series. ठीक है? वैल्यू सेम है, सेम सीरीज है, बट पोजीशन चेंज हो जाती है. कैसे? अब क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये जो नंबर है आपका, इस सीरीज में 5 नंबर्स हैं, करेक्ट? 5 नंबर में से आपको जाना है फोर्थ नंबर फ्रॉम द बैकवर्ड ऑफ द सीरीज. यहाँ पर आपका फिफ्थ है. फिफ्थ नंबर को भी हम एक नंबर कंसिडर करते हैं. 4 तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑल वी हैव टू डू इज कंसिडरिंग दैट योर n इज योर 5. यहाँ पर मुझे अगर फिगर आउट करना है कि मेरा फिफ्थ टर्म आगे से कौन सी पोजीशन पर आएगा, then what do I have to do is basically 5 plus 1 minus 4. So 5 plus 1 is 6 minus 4 is equals to 2. मतलब अगर मेरा n 5 है तो आगे से अगर मैं सेकेंड टर्म की वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो आई विल गेट माई नंबर. कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए. लेट्स अंडरस्टैंड. एक सीरीज है 1 4 7 10 30, राइट? मैंने बोला पीछे से मुझे फोर्थ टर्म की वैल्यू निकालनी है. पीछे से फोर्थ टर्म की वैल्यू आती है A4, आगे से वही टर्म आपका आता है A2 पे. मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ दैट व्हाट, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट दैट नंबर कैन बी रीच देयर.
आपका a will always be equals to 10, right? आप सीरीज को उल्टे तरफ से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, आप बस अज्यूम कर सकते हो. मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट assuming, but formulas will always work basis what the connotations have been defined. सीरीज आपकी यही रहेगी 1 4 7 10 13. आपकी फिफ्थ पोजीशन अगर आप पीछे से अगर आप देखना चाहते हो, सॉरी योर फोर्थ पोजीशन अगर आप पीछे से देखते हो इज योर सेकंड पोजीशन फ्रॉम द बिगिनिंग. हाउ डू यू कैलकुलेट दैट? कंसिडरिंग दैट जो पोजीशन है आपकी जो nth नंबर है उसको भी मुझे कंसिडर करना है ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस, तो उसमें हम एक 1 को एडिशन कर देते हैं एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं जिस वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है. So 6 minus 4 is equals to 2. So basically I am finding out A2 in this case of the series, right? अब हम इसको फटाफट अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो हम फिगर आउट करेंगे कि जब n is equals to 25 था, right? और मुझे बोला गया कि मुझे 11th टर्म पीछे से फाइंड आउट करना है, मतलब आगे से मुझे कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है? मुझे फाइंड आउट करना होगा n plus 1 minus the term that I want, which is 11. So n plus 1 will be 25 plus 1 minus 11, which is 26 minus 11, which is equals to 15. मतलब मुझे आगे से 15th वाला टर्म फिगर आउट करना है. मतलब सेम थिंग, फर्स्ट पार्ट में मैंने अपना a डिफाइन किया था 10, अभी भी 10 ही रहेगा. d डिफाइन किया था -3 बिकॉज इट इज 7 minus 10 minus 3, 4 minus 7 minus 3. एंड इस केस में n हो जाएगा मेरा 15. करेक्ट? यहां पर मुझे अपना क्या निकालना है? वैल्यू जो कैलकुलेट करके लेकर के आनी है, दैट इज गोइंग टू बी माय an, which is going to be my an is equals to a15, which will be a plus n minus 1 into d, which will be 10 plus 15 minus 1 into d, which will be 10 plus 14 into minus 3. My bad. So your 15th term of the series from the beginning is minus 32, which is also your 11th term from the last. Your question was a little long. Why? Because it had 3 parts. First part में आपके पास लास्ट वाली प्लेस नोन थी, मतलब ये नोन था. इस नोन नंबर को पहले आपको निकालना था कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस नंबर, राइट? विच इज वाई फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमने इसको डिफाइन किया एज द लास्ट नंबर, कंसिडरिंग दैट दिस इज अ फाइनाइट सीरीज, कंसिडरिंग दैट L इज द कॉनोटेशन फॉर -62. L को -62 कंसिडर करके हमने अपना n निकाला. n आया 25. फिर हमने सेकेंड पार्ट में ये निकाला कि अगर हम आगे से चलते हैं और पीछे से चलते हैं तो जो जहां पर हम जाके मीट करते हैं उस नंबर पे कैसे अराइव करते हैं, हाउ डू वी अराइव देयर. सो वी फिगर्ड आउट अ फॉर्मूला सेइंग दैट कि अगर जिस पोजीशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको भी काउंट करते हुए चलेंगे तो योर नंबर सीरीज विल ऑलवेज हैव वन एडिशनल स्पेस फॉर यू. सो n plus 1, which means n plus 1 minus, you have to find out the 11th term. So minus 11 gives you 25 plus 1, 26 minus 11, which means the 15th term. मतलब अगर आप सीरीज के स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हो तो 10 से लेकर के आपको जाना है 15th टर्म तक. So it becomes a15 is equals to minus 32, which is also your 11th term from the last. Correct? This question is actually a combination of multiple things. This will clear your fundamentals of mathematics. If you are able to crack this sort of a question, then it's good. It basically gives you a exercise to your brain so that you can think of all the possibilities that are there. Correct? Okay. Now हम एक और क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे. How do we do that? All right. So the next question that we take is from the exercise. Let's take it from the exercise. Exercise 5.2, page number 62. Okay.
क्वेश्चन नंबर है 7. Okay, the question says find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73. Okay, understand? Question में क्या क्या है आपके पास? Find the 31st term of an AP. Question ने बोला है क्या फिगर आउट करना है? 31st टर्म फिगर आउट करना है, मतलब मुझे फिगर आउट करना है A31. ओके, इन दिस केस A फिगर आउट करने के लिए मतलब n इज इक्वल्स टू 31. फेयर. दूसरा है whose 11th term is 38. अब 11th term is 38, right? Yes, that means n is equals to 11. Now, and the 16th term is 73. n is equals to 16. ठीक है, अब हमें फिगर आउट करना है n is equals to 31. वैल्यू क्या क्या पता है हमें? n is equals to 11 and n is equals to 16. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. क्वेश्चन लंबा होगा. आई एम गिविंग एन हेड्स अप. व्हाई? बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी सॉल्व्ड बाय लीनियर इक्वेशंस. जो इक्वेशंस हम पीछे सॉल्व करते चले आए हैं, लीनियर इक्वेशंस, इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो सारे आपके आगे के चैप्टर्स में यूज होते चले जाएंगे. And this is the first example that we have got. So look at it. This is going to be a very interesting journey for us. Now let's understand the 11th term का concept first. 11th term में बोल रहा है n is equals to 11, right? A unknown है, तो A मान लेते हैं कि A है. फॉर्मूला क्या रखेंगे हम? nth टर्म है आपका 38, तो इस केस में क्या होगा? an is equals to A plus n minus 1 into d. d भी हमको नहीं मालूम है, so this becomes d. So your equation becomes 38 is equals to A plus 11d minus d. Right? So this becomes 38 is equals to A plus 10d. Now, which means that A plus 10d is equals to 38 is your first equation. Correct? Now let's solve the second part of it. Your 16th term is 73, which means 73 is equals to A, which is unknown, n, which is 16 minus 1 into d, which is unknown. Correct? दो variables हैं आपके पास. So 73 is equals to A plus 16d minus d. Sorry, my bad. इसको आप straight forward भी कर सकते हो. ये basically 15 into d, 15d हो जाएगा आपका. मैंने क्वेश्चन थोड़ा elongate कर दिया. It is not required. Okay, 1 and 2. So basically आपके पास दो equations आ गई हैं. 38 is equals to A plus 10d and 73 is equals to A plus 15d. क्वेश्चन को ना हम पहले एलिमिनेशन मेथड से वेरिएबल एलिमिनेट कर लेते हैं, then let's proceed with it. So 38 is equals to A plus 10d and 73 is equals to A plus 15d. हम कैसे करते थे अपना एलिमिनेशन मेथड पे? जब हमें पता है कि कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया जा सकता है, which is इस केस में A, तो हम क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? हटा देना, मतलब माइनस करना. सब्ट्रैक्ट करेंगे ना. 38 माइनस 73, 73 माइनस 38 कितना होता है? 35 माइनस 35. I will explain it again. So 73 में से 38 सब्ट्रैक्ट होगा, which is equals to 35. 35 वैल्यू आएगी आपकी. साइन किसका लगेगा? बड़े नंबर का. बड़ा नंबर कौन? 73. तो 73 का साइन माइनस 35 इज इक्वल्स टू A और A आपका हो जाता है कैंसिल. प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 10 5. साइन लगेगा आपका बड़े नंबर का. बड़ा नंबर कौन? 15, मतलब 5D. सो D की वैल्यू यहाँ पर आती है 5 7 35, which means your D is 7. I hope यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. दो इक्वेशंस थी, दोनों इक्वेशंस को हमने एलिमिनेशन मेथड में रख के हमने D की वैल्यू को फिगर आउट कर लिया है. अब इस D की वैल्यू को जैसे ही आप किसी भी एक इक्वेशन में रखते हो, so say I will take it from equation number 1. Say I take it 38 is equal to A plus 10D.
तो 10 into 7 हो जाता है आपका 70, तो A हो जाएगा आपका 38 minus 70, तो A हो जाएगा आपका 70 minus 38 कितना होगा? 70 minus 38 becomes 10 minus 8 is 2 and this becomes 32, right? Yes, 32, but साइन रहेगा आपका माइनस का। पर चेक करते चलते हैं, डी आया है 7, यस यस एंड यस, गुड। सो ए आ गया आपका -32। मतलब एक सीरीज है जिसका आपका ए है -32, ठीक है, डी है 7 और आपको निकालना है 31st टर्म, मतलब ए 31, राइट। अब उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, राइट। अब तो हमको सब सारा अपना क्वेश्चन मालूम ही है। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था उसको हम हटा देते हैं क्योंकि हमें समझ में आ गया। ओके, 31st टर्म निकालना है, A31 is equal n is equals to 31। Now let's understand कैसे करना है इसको। हाँ, तो A31 is equals to A which is -32 plus n -1 into D which is 7, so is equals to -32, 31 minus 1 is 30, 30 into 7 is plus 210, so is equals to 210 minus 32, 10 minus 2 is 8 and this is 20, 20 minus 3 is A31 is equals to 178. This is your answer. We'll just cross verify it once. Yes, 178, right? This was your question. So we will end the today's session here. But I would want to say one thing. All the chapters that will come इसके बाद, basically जैसे जैसे आप अपने curriculum में आगे बढ़ते चले जाओगे, all your chapters are going to be interconnected with each other. Like we started off with quadratic, we learned linear equations, we learned polynomials. All of those things will be of use going further as well. It's very critical to understand कि आप अपने पीछे के चैप्टर्स को रिवाइज करते चले साथ साथ में, राइट। नेक्स्ट चैप्टर्स जितने भी होंगे, आई विल ट्राई टू कीप इट as quick as possible कि उसका explanation जल्दी हो जाए and I can take as much questions as possible. My agenda would be that. But if there are any questions that you want me to solve additionally on top of whatever I am doing, please do engage with the video and let me know in the comment section that what more questions can I take. As your chapters are increasing, the number of questions in each chapter is also increasing. Please let me know. I will should be able to solve it for you guys. Thank you for joining the session.